Hello guys, my name is Piyush Basanwal. I am basically from Geological Technology second year and presently I am living in Jaipur and I have started music production from past almost 1 year you can say but actually मैं खेलता रहता था FL Studio से from almost शायद 10th class तो बाकी प्रोफेशनली थोड़ा मैंने स्टार्ट किया एक ईयर हुआ ऑलमोस्ट 1 year I have started professionally creating mixes. So yeah, let's go. Uh, तो बेसिकली FL Studio क्या है? FL Studio is a DAW, Digital Audio Workstation. So basically, digital audio workstation are the softwares which we use to create music, or like which we use to record different instruments or vocals or different patterns, which is further used to create a single song. तो song basically song क्या होता है? Song is a mixture of different components. Components are like piano, drums, vocals, or you can say kicks or many things, guitar, etc. So after combining these things, we make a music. So firstly, to create a song, we have to first know the song. कि song क्या होता है, ये music क्या होता है. So if you listen to more and more music, then you will get to understand that music में एक particular pattern होता है, एक particular flow होता है, और एक particular components होते हैं, और fixed components होते हैं, that is used to create a flow. और you know अगर कुछ भी ऐसे कि मतलब randomly कुछ भी कर दें, if we do random things in music, you will not enjoy that. So there should be a pattern and a flow. तो बेसिकली डॉ इसलिए होता है. अब हम मैं इसका FL स्टूडियो है, FL स्टूडियो का इंट्रो दे रहा हूँ मैं आज. तो FL स्टूडियो में हम अब बेसिकली मैं पहले ये बताऊंगा. आई विल टेल यू दैट व्हाट आर दीज बटन्स एंड व्हाट इज दिस वर्क स्पेस एक्सेट्रा. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट with new project, new FL Studio project, basic with limiter. Okay. No. How to download? From Get into PC, you can get different sites there. So there are cracks on Get into PC, and we have also shared easy to download crack on our Discord. So yeah, we cracks. Actually, it is very expensive. So yes, but we have created a new project. What are these workspaces? I will tell you. First of all, we will get to know these buttons, or you can say these areas. So this is what we call a playlist. This bigger screen you visible on your screen. It is playlist. Here you will put your patterns, different patterns, which is further combined and create a song. So song का basic part होता है BPM, beats, और ये हाँ यही होता है. तो beats के according हमारा song बनता है. तो beats क्या होती है? Beats are like loops, or you can say a particular rhythm of a song. Like if you know that 120 BPM, so it will be like 120 beats per minute. Like if you clap 120 in a rhythmic manner, it will be a beats. And with respect to that only, we will create a music. Okay. So first of all, these are a file. Here you will get to see that different files from your FL Studio. Then edit, no one. Add is used to enter different samples or VSTs or plugins. पैटर्न्स अभी अभी हम डिस्कस करेंगे. व्यू अभी ये काम के नहीं है. फिर आता है हमारे यहाँ पे मेट्रोनोम्स और ये. तो FL स्टूडियो का बेसिक ये रहता है कि अगर इफ वी पुट अ कर्सर ऑन अ डिफरेंट बटन, then the information will be shown on this panel, hint panel. So for if you click go on this metronome, it will show metronome. So if you get confused at what these buttons are, then you can take a hint from that. Okay. तो अब ओके. तो हमारे ये चीज है. फिर ये होता है दिस इज बीपीएम मीटर. So first, from if you are creating a song, first you have to decide what BPM are you choosing to make a music. And there are different genres. Like if you take big room EDM, it is created mainly from 126 to 130 BPM. And if you choose hip hop,
hip hop is created around 150 BPM, and if you choose like Future House 124 BPM, and Mumbaton, like you have listened DJ Snake or other, that is 110 to 120 BPM. तो first you should know your genre. तो और वो कैसे होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग सुनने पड़ेंगे। आप अपना फील्ड एक जनरेट करो। आप गानों को सुनने के लिए मत सुनो, उनको फील करने के लिए सुनो। दे शुड बी पार्ट ऑफ यू, देन ओनली आफ्टर यू कैन create a music. So these are BPM. So I will be choosing any BPM. 120. Let's choose 120 BPM. That's my first part. Then metronome. Metronome. No, we will not be discussing it right now. This is playlist. Here we will put our different samples, which is further created to make a song. Then this is option. सर ये ऊपर कैसे होगा? अच्छा हो गया। फिर ये आता है हमारा पियानो रोल। पियानो रोल इज बेसिकली, हाँ ये चीज है कि ऐसी कोई साउंड नहीं है, देयर इज नो साउंड existing that you cannot create on a piano. Like if I create this clap sound on my power bank, it is a sound and I can put this sound on a piano. डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन का यही एक प्लस पॉइंट है, यही एक एडवांटेज है। You can create any sound on piano, and music can be created with any type of song. Okay, so these are piano rolls. Here are basically piano keys, notes, which we say notes. So, and notes are used to create for chords and melodies, and from that we further create our song. Okay. Then this is channel rack. Channel rack is basically uh, basically is a area where we put all our samples. Samples क्या है? Instruments. Samples are basically instruments like kick. Here are in the default there are 4 different instruments: kick, clap, hat, snare. And these columns you are seeing, these are your notes. So these are just for if you are new to this software, you should play with this one. Like if we click on the different notes, it will create a pattern in particular instrument. Let's play it pattern. तो एक ये वो बन चुका है, एक पर्टिकुलर वो मैंने वो नोट्स असाइन कर दिए किक को कि यू हैव टू प्ले लाइक दिस इन अ पर्टिकुलर फ्लो. If I put it randomly, then it will not be sounded like this. It is not good to our ear. That there should be a proper rhythm. Okay. If you left click, then notes will be assigned, and if you right click, then notes will be getting deleted like this. If you drag और वो भी कर सकते हो आप particular एक उसको delete करने के लिए. So and we can see that 2 buttons are there. This first one is for volume. No, panning. What is panning? Basically panning is shifting your sound from this part to this part. If panning is in center, then you will be getting sound in both of your speakers. And if you pan to the left, you will only hear in this, and if you pan to the right, you will only hear in this one. Okay. And this button is for volume of a particular instrument. Let's just imagine that there are different instruments, and we all know that we need particular volume level for different instruments. If you like, you put a scale of guitar very high and vocals very low, then it will be inconvenient to us, that we will not be able to listen to the vocals and etc., and those are the major part. So with the help of these, we can differently assign a volume level to different instruments, which will further be helping in good listening. Okay. So like that, clap, hat, snare. And if we are putting a particular new instrument, then we have to first put it in channel rank. Like for example, X. These are the default one. I have put in many samples for me. Don't get confused. Like you choose toms. And if you want to listen to a particular instrument, you can check by clicking on them, left clicking on them. Then if you like that sound, then just left click, drag to the channel rack. Then see, this sample is getting inserted in this channel rack. So this is our sound.
Okay, this is our instrument which we'll be using in further creating a song. And if on left clicking on a particular instrument, this window appear will be this window will get appear, and on left clicking on this part, you will get to know what sound it is. Or then this is volume button. You can assign a different volume level to it. This is pitch. Pitch is basically कि कितना शार्प होनी चाहिए साउंड और कितनी मतलब वो होनी चाहिए, डल होनी चाहिए उस हिसाब से. फिर बेसिकली अभी स्टार्टिंग में ये काफी है. फिर टाइम पिच मल्टीपल ही होता है. अब एक चीज नोटिस करना, मैं यहाँ वॉल्यूम बटन, इफ आई एम यूजिंग वॉल्यूम बटन, देन दिस इज ऑल्सो गेटिंग इफेक्ट. दीज आर कनेक्टेड. सी, तो बेसिकली ये कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड है सारे बटन. तो आप लोग ये यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर और डायरेक्टली फ्रॉम हियर. ओके, then every different samples have different their particular I don't know the workspace name. Then then we will know channel rec completed. Mixer. Then this part is mixer. Mixer is basically your sound receiving unit. अगर मतलब कभी किसी ने म्यूजिक सेक्शन का कुछ वो इवेंट अटेंड करा हो, इफ यू हैव अटेंडेड म्यूजिक सेक्शंस, देन with it is hosted with the help of audio section. And audio section का काम ये रहता है वहाँ पे कि we use mixers. Grand machine is there, so from that we are controlling different sound levels of different. हाँ ठीक है, चिल है. तो डिफरेंट साउंड लेवल हम उस पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक उसमें म्यूजिक सेक्शन का होता है तो कोई बोलता है कि गिटार का वॉल्यूम बढ़ा दो, आप वोकल का वॉल्यूम कम कर दो, वोकल्स हमें थोड़े लो चाहिए ताकि कन्वीनियंट रहे. तो बेसिकली डिफरेंट सैम्पल साउंड go through mixers, and from mixer, these are mixers, then it go to grand mixer, which is master. Master is the final input. It receives your all of the sounds and all of your sound which gets you further just edit or you creates effects in them. Then it goes to master, and then it goes to output, which you will listen. जैसे कि if I click on kick, so first you can see that there are waves appearing here. So this sound is going through mixer, then from mixer to master, and from master to our ears through these output instruments. Okay, so this is mixer, and before in mixer there are different what we call mixer are different a particular component. Here we can put different types of software. Further एक अलग सॉफ्टवेयर भी होता है इनके अंदर जो इनके साथ अटैच रहते हैं to create effects on our sound. Like if you know that there are echoes, reverbs, or we can make a boy sound like a girl. So these are just done with the help of these different types of softwares. Okay, ये और आगे डीप में है. फिर उसके these buttons, these are not useful in starting. Okay, so these are basically our different types of workspaces. Now अब हम अभी कभी भी स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट. अब जैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट, तो पैटर्न्स होते हैं. पैटर्न्स आर विजिबल हियर. पैटर्न्स आर बेसिकली लाइक एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपको एक पैटर्न बनाना होता है. तो जैसे कि कभी आपने नोटिस किया हो, नहीं मतलब ये कॉमन सेंस ही बात है कि आप एक ही उसमें लाइन में सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. और हाँ, बेसिक रूल ये है आपके सॉन्ग मेकिंग का कि आप जितना कन्वीनियंट रहोगे, जितना वर्क स्पेस आपका क्या विजिबल अच्छे से होगा, मतलब प्रॉपर मैनर में होगा रखा हुआ. एक वही बात, इट्स इज द सेम सिमिलर थिंग लाइक यू पुट योर थिंग्स हियर एंड देयर इन योर रूम, then you will find difficulty in finding a particular thing that you need at that particular time. That's the basic thing in this. So you have to properly assign everything so that you don't get confused and there is no any inconvenience. So these are patterns. Particular sample is assigned to particular pattern. Then these pattern are further put in this playlist. Like it is pattern 1. Then this is pattern 2. So like I assign a sample 1 to this pattern 1. It will consist only kicks or snares or different instrument. Then track 3 will consist, these are tracks. Tracks are particularly it's like different layers. You can assign different layers in at a particular time.
so that all the instruments get played at a same time. So like in the, if you see that 5 to 6 beats part, all the instruments beneath it, like track 3, track 2, when we play all of them together, they will play together, and that's the creativity of a song. So yes, different patterns are used, and we differently assign different instruments to them. So ठीक है, try किए इसको actually डालो. हाँ, so pattern one. अब in the starting, we will create a pattern one. Right click on it. You will see a rename and color option. So let's assign it kick. Okay, we will create a kick pattern. Then right click on it, but give it a particular color. Like we will give it a red. ठीक है, तो ये एक किक पैटर्न बन गया है, और और इसको हमने ट्रैक 1 पे असाइन किया है, तो ट्रैक 1 पे भी राइट क्लिक, यू विल राइट क्लिक ऑन ट्रैक 1, rename color and icon. We will give it a name kick, assign a color red. Okay, so it provides us a conveniency to see that this particular part belongs to kick only, और इसके साथ इसके अंदर कुछ और नहीं डालना चाहिए अपन को, ताकि कंफ्यूजन हो जाए. फिर then we go to channel rack. This is channel rack. Then kick. We will create a simple pattern. Alternate force, consecutive force or high. हाँ. अब in channel rack, if you there is a button. This one. This. I don't know name of this. If you want to change its further create effect in it, like you have seen that in piano, if you press key harder, then the sound will be it will be louder, and if you play it smoothly or softly, then the sound will be lower. So these are basically that thing only. It is used to create that type of effect. Like if you note, if I अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, तो मेरे जो नोट्स होंगे वो लो लेवल पे प्ले होंगे, एंड इफ आई अगर मैं इसको हाई करता हूँ तो वो ज्यादा तेज प्ले होंगे. फिर रिलीज ये होता है कि इफ आई प्रेस अ की ऑन अ पियानो, तो साउंड कितनी देर तक रहेगी. अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो एक मैंने बटन दबाया, वो इन्फिनाइटली चलती रहेगी, पर वो इन्फिनाइटली चलानी नहीं है, वो कभी ना कभी गिरनी चाहिए. तो रिलीज उसके लिए होता है. पैनिंग इज जस्ट टू शिफ्ट योर साउंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दिस इज नॉट यूजफुल. ओके, so basically this is used to create effect. Now kick pattern. Up there are two parts in this: pattern and song. So pattern is used to particularly play a particular pattern in a song. Like if you want to listen that कि guitar is perfect or not, तो गिटार का पैटर्न प्ले करोगे. अब पूरे गाने को एक साथ चलाओगे तो फिर बहुत ऐसे डेप्थ में जाके हल्का हल्का सुनना पड़ेगा, and you will not be able to listen to a particular instrument. Okay, so that's why pattern, this option is used. Like if I play, no, further we will create another sample like clap. Let's create a effect by clap. I have filled randomly, I have filled. Okay, so let's play pattern. Okay, sorry. तो अभी एक किक पैटर्न बना दिया. अब इसको आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करोगे, या फिर यहाँ ऐड प्लस बटन है, हियर इज प्लस बटन, क्लिक ऑन इट, देन पैटर्न 2 विल बी क्रिएटेड. पैटर्न 2 विल गिव नेम ड्रम्स. ड्रम्स आर बेसिकली स्नेयर्स, हैट्स, these symbols. तो ड्रम्स. ओके, फिर इसको एक पर्टिकुलर कलर दे देंगे. विल प्रोवाइड इट अ पर्टिकुलर कलर like yellow. Okay, then new pattern is created called drums. Then furtherly we will put our drums in track 2. Okay, so let's change the name of track to drums. Right click, no sorry, left click, yellow. So this is pattern 2. Okay, uh, what are the drums? Let's create hat and snare. We put hat. You will see that you can switch between different patterns by left clicking on it, pattern option, and dragging it. So as you can switch between different patterns. Let's go kick. You will get to know that if I go click on kick pattern, then the kick notes will get visible, and if I go on drums pattern, then these get invisible. वो हट जा रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न हमने नया बनाया पर्टिकुलर नए इंस्ट्रूमेंट के लिए. तो अब हम हेड को फिल करते हैं लाइक नो. Okay, randomly I have put them. Now let's put snares too.
And if it is time consuming, so you can fill them directly by like fill each 2 steps, 4 steps, 8 steps. ऐसे आपको अगर बहुत आगे तक fill करने हैं, तो मैं 2 steps fill कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पैटर्न एक सेलेक्ट कर रहा हूँ किक, और मैं उसको प्ले कर रहा हूँ पर्टिकुलर पैटर्न ऑप्शन पे क्लिक करके, तो मेरी किक आपको सिर्फ किक ही सुनाई देगी। फिर अब मैं इसका पैटर्न चेंज कर रहा हूँ ड्रम्स, और प्ले करूंगा तो सिर्फ आपको जो ड्रम्स पैटर्न है वो सुनाई देगा। ओके, तो ये अलग अलग पार्ट। और अगर मैं सॉन्ग पे क्लिक करके और फिर प्ले करता हूँ तो सब कुछ एक साथ सुनाई देगा आपको। और सॉन्ग पे अगर सॉन्ग सेलेक्ट करके आप प्ले करते हो तो ये प्लेलिस्ट होती है, ये प्ले होगा। यहाँ पे आप कर्सर देखना, ये मूव होता है जैसे आप प्ले करोगे। तो दिस इज बेसिकली you have to play in this channel racks with default samples to create different types of beats. मैं जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मैं ऐसे खुश हो जाता था कि मैंने तो बहुत कुछ अमेजिंग कर दिया। बट मतलब धीरे धीरे फिर तुम पता चलेगा यू कैन डू इम्प्रूव अ लॉट बेटर। और फिर ये तुम्हारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तुम टाइम दोगे। बस तुम्हें खेलते रहना है इसके साथ में और कुछ नहीं। फिर अब हम जाएंगे सैम्पल्स में। अब गए, अब डिफॉल्ट सैंपल मान लो FL कीज। अब मेरे को पियानो चाहिए। अब मैं नॉर्मली तो एक डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करेंगे हम। चले रीनेम वापस से पियानो। ओके, we will provide it a different color like blue, right? Tag 3 will be a piano. We will rename it piano. Okay, now pattern 3 piano is selected. Just remember that कि अगर particular pattern यहाँ पे मान लो मैंने drums select कर रखा है, I have selected drums pattern and I go on channel rack जहाँ पे हम अपने नए instruments डालते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं। तो फिर अब मैं आई विल क्लिक ऑन प्लस बटन और कैन डायरेक्टली ड्रैग आर माय इंस्ट्रूमेंट और सैंपल। तो इफ अगर मैंने ड्रम्स यहाँ सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने अगर FL कीज डाल दिया जो कि पियानो इसका डिफॉल्ट, तो वो पैटर्न पियानो में नहीं गया है, वो ड्रम्स में गया है इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज गलती, ये गलती हो जाती है स्टार्टिंग में, तो इस चीज का ध्यान रखना। you should take care of it. So अब ये गलती हुई तो you have to delete the instrument. Right click on it, delete. Okay, now I will select my piano pattern, then I will select I will insert FL keys. FL keys is basically a piano, a default piano of FL Studio. So and then you will see a drop down button here on the top left corner. Then it will show you a piano roll option. पियानो रोल हर हर सैंपल का, हर इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो आप किसी भी साउंड को या सैंपल को आप पियानो में कन्वर्ट करने के लिए पियानो रोल्स होता है। पियानो रोल क्लिक किया तो पियानो रोल विल गेट विजिबल। ओके, ठीक है। अभी इसका अलावा एक चीज मैंने मिस कर दी, वो मेरे को कवर करना है। किक पे गए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने किक अल्टरनेट फोर रैक्स में कर रखा है, 4 स्टेप्स में कर रखा है, 4 बीट्स पे। पर मुझे 4 बीट्स में नहीं चाहिए, मेरे को बहुत माइनर में चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल हियर। और इसमें ये भी है कि अब एक पर्टिकुलर नोट पे किक असाइन हुई है। अब जैसे कि मान लो पियानो में करते हैं, यहाँ पे आई विल असाइन सम पियानो alternate 4 beats. I will play. It is just creating a constant sound of a particular note, but I want it to vary. Like constant note पे कोई song नहीं बनता, तो हम इसे vary करना है। That's where we will use piano roll. Piano roll वहाँ helpful आता है। तो if I right click on it, piano roll, then you will the notes are getting visible and these are basically these notes only. तो एक पर्टिकुलर नोट से लाइक C5, तो चैनल रैक्स में आप C5 ही बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको पियानो रोल का हेल्प लेना। अब पियानो रोल में क्या होता है, पर्टिकुलर नोट्स में जूम इन कर, हाँ, शॉर्टकट्स आर की टू सक्सेस इन FL स्टूडियो। ये बेसिक चीज है। तो FL स्टूडियो में अगर आप ये क्या कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर नोट पे जाओगे तो यू कैन edit it particular note, like I can drag it longer so that it will create a longer noise and it will not release further. तो ठीक है। अब I can pitch it up or pitch it down.
like if I want to go to it a major scale, a minor scale, ये these are musical theories term, तो ये म्यूजिकल थ्योरी अलग से करनी पड़ेगी सबको, उसके बाद ही होगा. So like I drag it to up, then the pitch is getting increased. If I bring it down, the pitch is getting decreased. For this purpose only piano roll is useful to create different melodies. Like I put कुछ भी randomly उठा के कर रहा हूँ मैं. तो ऐसे melody आपको you will think about a particular melody and then you convert into notes and then you will put in this form. Then the melody gets created on a particular instrument. तो वही है, you have to know your melodies and know your notes. फिर चलो ये हमारा हो गया पियानो रोल का. अब इसमें ये यू विल सी द कंट्रोल ऑप्शन है. अगर कंट्रोल के ड्रॉप डाउन में आप जाते हो, यू विल नोट दैट कि पैन वेलोसिटी रिलीज जो हमको चैनल रेक्स में मैंने यहाँ पे बताई थी, ये पर्टिकुलर ये चीज़ यहाँ पे अपीयर होगी, कंट्रोल पिच वगैरह ये. ठीक है, अब पियानो का एक पैटर्न बना दिया हमने 4 नोट्स का. फिर अब मैं पैटर्न को ड्रैग करके ऐसे डालूंगा. लेफ्ट क्लिक इज पुटिंग अ पैटर्न, एडिंग अ पैटर्न, एंड राइट क्लिकिंग इज डिलीटिंग इट. ओके, राइट क्लिक किया मैंने, डिलीट हो गया. तो अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो पेस्ट तो कॉपी पेस्ट होता जाएगा, और राइट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ डिलीट हो जाएगा. क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप हर पैटर्न एक एक उठा के ऐड नहीं करोगे. हाँ, और बटन्स में बताना भूल गया. दिस इज पेंसिल बटन. इट इज यूज टू insert a particular beat pattern or a single pattern only. Like if I left click, it inserts a piano pattern, but if I left click and drag it, it will not copy paste. तो एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए होता है. फिर आता है हमारा ब्रश टूल. ब्रश टूल क्या काम आता है कि लेफ्ट क्लिक किया तो एक पैटर्न ऐड हुआ, और लेकिन अगर मैं क्लिक करके उसको ड्रैग करता हूँ तो वो कॉपी पेस्ट होता जाता है, और अगर मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो डिलीट हो जाता है. तो इन बिगर प्रोजेक्ट्स इट इज यूजफुल. Then this is delete button to delete a particular pattern. Okay, left click, delete. Then this is no sound button. If you go on a particular pattern and left click on it, so it will mute it. किसी पर्टिकुलर किसी सॉन्ग के पार्ट को म्यूट करना है तो उसके लिए लेफ्ट क्लिक. अब ये इसमें हेल्प आता है कि इफ जस्ट इमेजिन कि यू हैव रिकॉर्डेड सम वोकल्स फॉर योर सॉन्ग. तो वोकल्स अब हमने रिकॉर्ड कर दिए पर वो थोड़े एब्रप्ट है. दोज आर नॉट सूदिंग एंड दोज आर नॉट आर फाइनल ऑप्शन, और फाइनल की मतलब वोकल्स फाइनल है वो. तो यू विल नॉट बी डिलीटिंग इट. अगर डिलीट कर दिया तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन. एंड इट कुड बी पॉसिबल दैट ये चीज और होती है कि आपको कभी कभी कोई चीज एक टाइम पे अच्छी नहीं लगती पर वो बाद में जाके अच्छी लगने लगती है. जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप कि स्टार्टिंग में अच्छी लगेगी, बाद में बुरी लग सकती है, बाद में अच्छी लग सकती है, पहले बुरी लग सकती है. तो इस चीज में काम आता है कि उसकी वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी, या फिर बाद में आपको समझ में आएगा यार ये तो अच्छा था, ये तो बहुत ही बढ़िया था. तो उसमें आपके ये चीजें आएंगी, म्यूट और अनम्यूट वाले काम. तो लाइक मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो ये पार्ट नहीं प्ले होगा, बाकी पार्ट प्ले होंगे. अब नहीं हो, किक प्ले नहीं हो रही है. तो यहाँ पे म्यूट बटन काम आता है, और अगेन आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा. ठीक है, देन दिस इज नॉट यूजफुल. दिस इज कटर. इट इज यूज टू कट अ डिफरेंट पैटर्न. लाइक एक चीज और बता देता हूँ. कंट्रोल बटन दबा के अगर स्क्रॉल किया आप अपर साइड पे स्क्रॉल करते हो अपर डायरेक्शन में तो जूम इन होता है. कंट्रोल दबा के लोअर स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट होगा. ऑल्ट दबा के और अगर आप अपर स्क्रॉल करते हो तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ नहीं ब्रेथ बढ़ेगी. ठीक है, और वो करोगे तो छोटी होगी. तो ये कन्वीनियंस के काम आता है. फिर उसके बाद में हाँ, ये हो गया हमारा कटर. तो एक पर्टिकुलर मैंने जैसे पैटर्न बनाया पियानो का. अब पियानो में क्या रहता है कि अब मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर पार्ट ऐड करना है इसमें. आई हैव टू add a particular part. I don't want these two notes, so I will cut it in between. Then these will get separate. हाँ, it can also be used to vocal chops. Like you have listen कि vocal chops से भी कई drops बनती है कई गानों में क्योंकि vocal से इफेक्ट आ रहे हैं. तो वहाँ पे ये काम आता है कटर ऑप्शन टू क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स और एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये हमारे हो गया कटर. फिर उसके बाद जूम है और फिर ये प्ले है.
अब जैसे कि मान लो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इफ यू हैव अ बिगर प्रोजेक्ट, तो अब वही चीज है कि आप पर्टिकुलर आपको एक इंस्ट्रूमेंट सुनना है, तो आप उस पर जाके लेफ्ट क्लिक कर दो तो वो पर्टिकुलर पैटर्न आपके प्ले होगा। ये बटन उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मल बटन है अपने। फिर बाकी मैं आपको एक कॉर्ड्स ये बेसिक्स है अपने, ये इसके अलावा कोई, इसके आगे कोई बेसिक नहीं है। फिर वो आगे जाके थोड़ा एडवांसमेंट में ही आ जाता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड वीएसटीज डालोगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डालोगे, डिफरेंट इफेक्ट्स डालोगे, फिर उससे एक सॉन्ग बनेगा। तो स्टार्टिंग में आप जो डिफॉल्ट एफएल स्टूडियो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनसे बीट्स क्रिएट करना ट्राई करो। कि उसको ऐसे नहीं कि मतलब कि मेरे को करना है, उसके प्ले एक गेम भी तो खेलते ही हो। स्टार्टिंग में कोई भी एफपीएस फर्स्ट शूटिंग गेम में ऐसे नहीं होता कि प्रो, वो धीरे धीरे प्रो बनता है। पहले तो वो बस ऐसे एंजॉयमेंट के लिए खेलेगा, फिर धीरे धीरे उनको लगेगा कि यार नहीं मेरे को तो अच्छा ही खेलना है, फिर वो मेहनत उसमें ज्यादा एफर्ट्स डालेगा और वो इसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये वही है, एक तरह से गेम ही मान लो। तो आप खेलना है पहले, आपके साथ इसके साथ एंजॉय करना है इसको, फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हाँ आप ये किस में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा, फिर उस हिसाब से आप क्रिएट करोगे। अब मैं एक कॉर्ड्स बना देता हूँ, लाइक अगर मेरे को डिफरेंट लेयर ऑफ कॉर्ड्स क्रिएट करनी है पियानो में, मैं एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बनाया नया, हम इसको रिनेम करेंगे कॉर्ड्स। ओके, कॉर्ड्स का मैं कलर देता हूँ एक पर्टिकुलर लाइक लाइट ब्लू, राइट। ट्रैक 4 में जाएंगे, रिनेम कलर, इट्स दीज आर कॉर्ड्स, लाइट ब्लू, ठीक है। वैसे हाँ मतलब बोरियत सी हो रही होगी मुझे पता है, पर है ना ये बोरियत आगे जाके मौज बनने वाली है एकदम बढ़िया आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा मतलब सीख लो, नॉलेज वाली बात है इसलिए बस। हाँ, अब कॉर्ड्स में हम जाएंगे, कॉर्ड्स के अंदर हम असाइन करेंगे पर्टिकुलर अपना इंस्ट्रूमेंट, लाइक एफएल कीज ही कर देते हैं। एफएल कीज मैंने सेलेक्ट किया, एफएल कीज पार्ट 2 आया यहाँ पे, नया सैंपल एफएल। और ये जो नया पियानो है, आप डिफरेंट सैंपल्स को डिफरेंट डिफरेंट उसमें पैटर्न्स पे कॉपी कर सकते हो, वो यूनिक होते हैं अपने अपने आप में यूनिक होता है। तो एफएल कीज में हम गए, अब यहाँ पे मैंने पियानो रोल ओपन किया, फिर अब अपन कुछ कॉर्ड्स बनाते हैं। मेरे को एक्चुअल में म्यूजिकल थ्योरी आती नहीं है वैसे, तो मैं गूगल की हेल्प लेता हूँ कॉर्ड्स बनाने में। मेरे को वैसे हाँ, बैकबोन बोल सकते हो, म्यूजिक थ्योरी इज बैकबोन ऑफ योर म्यूजिक प्रोडक्शन। तो म्यूजिकल थ्योरी आनी चाहिए, तो मेरे पास मैंने एक पैटर्न पहले बनाया था, मैं उसको क्रिएट करूँगा। मेरी बेस नोट होगा जी। हाँ, इफ यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर नोट, so you will get to know that which key is this, they like in this hint panel, like if I go on C5, then it will show C560। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से नोट्स है, कौन से नोट पे हो आप, और आपको उस हिसाब से पर्टिकुलर आप नोट्स आप उसमें एंटर कर सकते हो। अब मेरे को जैसे जी शार्प 5 चाहिए, जी से शार्प। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज पैनिंग अगेन, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू, मेरा मैसेज चलेगा। हर्षित सर एक बार पढ़ दोगे? Okay. Panning. Okay. So panning is basically, let's say I am wearing headphones and Piyush is also wearing headphones. So if I pan to the right, I'll only hear sound in my right ear. So that is the thing. यार demonstrate कर दे एक एक बार लाइव panning. डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, हाँ। मैं Yeah. पर्टिकुलर So एक panning प्ले कर रहा panning हूँ। will be hearable if you are wearing headphones. So I hope हाँ, you are wearing headphones. Uh, this is panning button is this, then I will slide it to left side. You will notice that only sound is coming on the left part, and if you slide it to right side, then it will get panned to different part. Panning is just this thing only, like if there are overcrowding of sounds, अगर दोनों में साउंड्स ओवरक्राउड हो रही है, तो आप एक पर्टिकुलर उस क्राउड को कम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में असाइन करते हो साउंड्स को। ठीक है। तो ये होता है कि वही है कि अगर जितना ज्यादा क्राउडिंग होती है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जितना ज्यादा रश नहीं होगा उतना अच्छा भी लगता है, उतना कन्वीनियंट भी होता है। वही सेम चीज है। तो क्लैश ऑफ अगर अगर हाँ साउंड के क्लैश होते हैं, तो वो नॉइज बनती है एक, और नॉइज कभी भी सूदिंग नहीं होती, स्पेशल साउंड। हाँ, तो हमें एक पर्टिकुलर उनको असाइन करनी होती है, एक जगह देनी होती है उनको, उनके स्पेस देनी होती है, ताकि वो खुद उस स्पेस में पर्टिकुलर अपनी आइडेंटिटी दिखा सके कि मैंने एक पर्टिकुलर
एक फ्रीक्वेंसी असाइन करिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, तो मुझे सुनाई देगी, वो ऐसे धक्का मुक्की नहीं होगी, मतलब लाइक क्राउडिंग नहीं होगी वहाँ पे और नॉइज नहीं आएगी। तो असाइन असाइन करने पड़ते हैं, वो फिर थोड़ा एडवांस में आ जाएगा, अभी बेसिक्स में वो कवर नहीं करेंगे। Then we were on chords. We will go to chords, FL keys, piano roll. तो मैं एक chord बना देता हूँ, जी FL Studio, लाइक ये G#5 मैंने असाइन किया। फिर chords बनाने की तीन chords is basically combination of different notes। तो इस डिफरेंट नोट्स के कॉम्बिनेशन से एक सूदिंग इफेक्ट आता है। नॉट अ लॉट हिमांशु, देयर इज स्टिल अ लॉट मोर फन स्टफ लेफ्ट टू लर्न। ठीक है, B5, फिर हम आएंगे E6 एक। ठीक है, तो अब जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ऐसे ही रैंडमली नोट को कहीं पे रख दिया और प्ले किया, तो ठीक है इसका एक इफेक्ट आया। फिर मैंने उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन F6 पे रखा, तो एक पर्टिकुलर इफेक्ट आया। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कॉर्ड्स बनती है, एंड कॉर्ड्स आर बेसिकली कॉर्ड्स इज लीड्स अस टू अ डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स, सूदिंग इफेक्ट्स देता है। ठीक है, फिर F6, हाँ, by also one more thing, कि if you press control button and select, you can select a multiple items by these shortcuts, like control, and I want to drag all of them, I want to increase the length of all of these notes, then I will increase its size or decrease। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दूसरा पैटर्न बना रहा हूँ, A#5 is there, C#6 and F#6। अब इसमें भी मैं एक पर्टिकुलर एडिट करके बताऊंगा आपको कि क्या चीज अच्छी लग रही है, कैसी क्या चीज बुरी लग रही है। ओके, देन D#6 एंड B5 एंड G#5। तो ये एक पर्टिकुलर मेरा पैटर्न है। ठीक है, अब इसको हम प्ले करेंगे और फिर एक वो देखेंगे सुनेंगे कि क्या चीज है ये। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक साउंड बन गई मेरी, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सही लगे। हाँ, एक और चीज नोट्स में ये रहता है कि आप उसकी साइज राइट साइड से इंक्रीज कर सकते हो, लेफ्ट साइड से कभी इंक्रीज नहीं होती है वो। अगर आपको लेफ्ट में इंक्रीज करना है तो इसको उठा के लेफ्ट में ले जाओ, यू हैव टू ड्रैग इट टू द लेफ्ट साइड एंड देन इंक्रीज फ्रॉम द राइट साइड। तो ये अगर हो तो ये मत समझना कि प्रॉब्लम है ये FL में कुछ। अब मेरे को ये बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, अब यहाँ पे हम क्रिएटिव करेंगे कुछ, कि अगर एक आप नॉर्मल प्ले करोगे तो सूदेंगे। अब इसको मैं चॉप कर देता हूँ, जैसे कि अब मैंने इसको उठाया, फिर मैंने पेस्ट किया 3 पैटर्न, फिर इसको सेलेक्ट किया, छोटा किया, 3 में उसको रिपीट कर दिया, फिर इसमें भी कुछ इफेक्ट डाल देते हैं। और अब इसको प्ले करते हैं तो एक रिदम बनेगी। अब देखिए, इसको और थोड़ा वो कर देते हैं। अब ये मैं खेल ही रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ वो नहीं करके आया था, मेरे को एट द मोमेंट मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंट कॉर्ड्स बना सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। मेलोडीज के लिए यू डिफरेंट असाइन कर दो, फिर एक मेलोडी बन जाएगी। मेरे से कुछ भी अब ये बेकार। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब ये ठीक है रैंडम था इसलिए, रैंडम शॉट था इसलिए अच्छा नहीं। तो ऐसे करके हम मेलोडीज बनाते हैं। फिर ठीक है, ये बेसिक, तो ये चीजें थी हमारी बिल्कुल बेसिक्स, इंट्रो टू FL था ये बिल्कुल। कि आप मतलब बिल्कुल भी जब भी अगर आप न्यू हो FL के लिए, तो आप ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इन चीज़ों पे आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप फिर धीरे धीरे खुद ही एक्सप्लोर करने लग जाओगे इसको। मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था FL स्टूडियो के, आई हैवंट टेक एनी कोर्स और एनीथिंग एल्स, मैं आई जस्ट लर्नड इट फ्रॉम द यूट्यूब ओनली। खुद से करा जो किया अब तक, जो मैंने जितना भी किया है। तो मतलब यही चीज़ है कि मतलब अगर आप ये चीज़ सही से करोगे या इस पे प्ले करोगे तो आप धीरे धीरे करके इस स्टेज तक जा सकते हो, जो मैं आप लोगों को मेरा प्रेजेंट एक वो दिखाता हूँ। लाइक ये मतलब
मैंने वहां से स्टार्ट किया था और फिर मैं अब इस लेवल पे मतलब बहुत मेहनत से आया हूँ मैं, कि ऐसे करके आप डिफरेंट एक पैटर्न्स बनाते हो और फिर वो एक सॉन्ग बनता है आपके लिए। तो उसमें अगर आप स्टार्टिंग में एक बिल्कुल बेसिक्स में खेलोगे उसके साथ, धीरे धीरे उसको मतलब फील करोगे सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर आपका पार्ट बनना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए उसके साथ, फिर आप अब धीरे धीरे क्रिएटिविटी उसमें शो दिखाई दोगे। अब मैं एक लाइव रिमिक्स करता हूँ किस चीज़ का, तो अपन अब एक लाइव रिमिक्स सेशन रखते हैं। लाइक, तो मैंने एक साउंड निकाल रखी है एक पर्टिकुलर, तो अब मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमिक्स करूंगा, एक वोकल है उनको रिमिक्स करूंगा। वोकल अपने कहाँ गए, वो वोकल भी वो निकालने मेरे को थोड़े ढंग से ही पड़ेंगे। हाँ, तो ये मेरा वोकल है एक पर्टिकुलर। अब मैं स्टार्टिंग में मुझे जैसे अब मान लो मैं कोई रिमिक्स कर रहा हूँ गाना, तो रिमिक्स में मुझे ये पता होना चाहिए कि जो जिसको मैं रिमिक्स कर रहा हूँ उसका बीपीएम क्या है। हाँ, तो अब मुझे इसका पता नहीं है बीपीएम क्या है, तो यहाँ पे इस पे इफ यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सैंपल, तो इसके यहाँ पे लेफ्ट पे, यहाँ पे अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो एक डिटेक्ट टेम्पो बटन आएगा, यू हैव टू डिटेक्ट इट्स टेम्पो। फिर एक पर्टिकुलर रेंज होती है, मेजरली 75 टू 150 या 100 टू 200 रहता है, मुझे पता है कि इसकी 75 टू 150 के आसपास होगी, तो मैं सेलेक्ट करके देखूंगा कि कितनी बीपीएम है। अब मैंने देखा इसकी 102 बीपीएम है, पर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है 110 पे। तो अब मैं क्या करूंगा, किसको सेलेक्ट करूंगा और इसको फिट टू टेम्पो करूंगा, कि जो मैंने वहाँ टेम्पो असाइन कर रखी है उस टेम्पो के रेस्पेक्ट में इसकी टेम्पो इंक्रीज हो जाए, कि उसकी स्पीड होती है वो मान लो कि 102 बीपीएम पे आपका गाना चल रहा है और वोकल एकदम फास्ट चल रहा है, वो फ्लो टूट जाएगा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर उसी रेंज में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उससे आपका टेम्पो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 110 बीपीएम पे हो गया। इसको यहाँ से काटता हूँ। अब जैसे मैंने वोकल जो चूज किए ये करे हैं। बेटे बेटे मौज कर दी। हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह ठीक शेर है, हो तुम तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ठीक है, ये हमारा एक पर्टिकुलर मैंने एक सेलेक्ट किया, ये जो पार्ट है, अब इसको रिमिक्स करते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसमें मैंने एक पर्टिकुलर, फिर मैं अब इसका वो बनाऊंगा कि बेस की इस पे मेरी बीट चलनी चाहिए पर्टिकुलर 110 बीपीएम के हिसाब से। तो मैं किक्स, अब मेरे पास किक्स है, मैं किक चूज करूंगा इसके लिए। अब इसको है ना हम थोड़ा वो उस पे स्टाइल में बनाएंगे, लाइक मुम्बातौन टाइप का बनाएंगे इसको। 120 120 बीपीएम नहीं, 110 पे बनाते हैं, मुम्बातौन 110 पे सही रहेगा। ठीक है, अब मैं कोई किक सेलेक्ट करता हूँ इसके लिए, फिल्स किक्स, बिग किक्स। मुम्बातौन इज लाइक, जो ये अपनी बनाते हैं, डीजे स्नेक बनाता है और हेनरी फॉन्ग होते हैं और ये सब बनाते हैं, तो एक बिग किक चाहिए होगी मुझे इसके लिए। अब मैं ऐसे अलग अलग सैंपल प्ले करके देखूंगा कि कौन सा मतलब इस पे पीछे सही रहेगा। ये बिग किक है, मेरे को थोड़ी ठीक लग रही है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, नहीं नहीं, अच्छा ये वाली इसमें नहीं है, मतलब मैंने पहले से वैसे भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रखा है, तो मैं पहले से असाइन मेरा जो है किक उसको वो मिल नहीं रही मुझे, तो वो असाइन कर दूंगा। ठीक है, अब इस किक से मैं एक पैटर्न बनाऊंगा डायरेक्ट। ये अगर आप यहाँ पे भी पैटर्न बनाते हो और एक चैनल रैक में बनाते हो तो वो सेम चीज सेम बात होती है। मैं प्रेफर करता हूँ डायरेक्टली प्लेलिस्ट में वर्क करना। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे अल्टरनेट चार ये फिल कर देता हूँ, तो ये मेरी किक हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ट्रैक कर देता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को मुंबतौन इफेक्ट डालना है, तो थोड़ा स्विंग होना चाहिए, तो स्विंग के लिए मैं यूज करूंगा टॉम्स। टॉम्स अब बेसिकली कि ये इसमें स्विंग देगा वो। मेरा टॉम कौन सा था, इसमें नहीं है, ड्रम्स वर्जन 20। ठीक है, टॉम्स मिलेगा। ठीक है, तो मैंने एक ये पर्टिकुलर टॉम सेलेक्ट किया जो मेरे को स्विंग इफेक्ट देगा, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं प्ले करता हूँ। हाँ हाँ, एक इफेक्ट आया, ढिंग ढिंग, एक मतलब फ्लो बना मेरे को। अब मैं इस पे देखा मैंने कि हाँ मैंने एक बेसिक पर्टिकुलर एक चीज पकड़ ली।
अब मैं उसको रिपीट करूंगा इसमें, तो अब मेरे को एक अलग बीट फ्लो मिलेगा। ये इधर आएगा, तो एक रिदम आई अब मेरे पास। ठीक है, तो पहले हम अभी ड्रम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए जो वोकल्स है उसके लिए पर्टिकुलर, इसको और पीछे करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करके मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, शिफ्ट अगर ऐसे, हाँ, कंट्रोल प्रेस करके और लेफ्ट क्लिक करके हम सेलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके उस पर्टिकुलर पार्ट पे लेफ्ट क्लिक करके अगर आप ड्रैग करते हैं तो कॉपी हो जाता है अपने आप। शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट्स आपको याद होंगे तो आप कन्वीनियंटली है ना प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे, और आप ज़्यादा स्पीड पे काम कर पाओगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है ऐसे शॉर्टकट्स याद नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट के। अब पीछे जैसे अब 4 बीट्स रिपीट हो रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इफेक्ट डाले वाला, तो मैं इफेक्ट डालूंगा इसमें। हाँ, तो एक एंड में मुझे एक इफेक्ट मिल रहा है, धट धट, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। वापस से यहाँ रिपीट कर देंगे, फिर ठीक है। अब ये मैं वापस क्रिएट तो करूँगा नहीं, इतना टाइम, इतना वो मेहनत कौन करे। फिर वापस मैंने वही पेस्ट कर दिया उसको कॉपी करके। ठीक है, अब हम वोकल्स के ऊपर ये प्ले करके देखते हैं कि ये मतलब थोड़ा बहुत अभी तो, क्योंकि वो मैच्ड नहीं है, मैंने अभी उनको वोकल चॉप्स करके उनको असाइन करना पड़ेगा पर्टिकुलर पार्ट पे कि अब मेरे को ये सुनना है, अब मेरे को ये सुनना है, तो मैं प्ले करूंगा उसके साथ में। ठीक है, बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर तुम तो। ठीक है, तो मैंने सुना मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ऐसा रिदम सा आता हुआ दिख रहा है कि हाँ भाई कि थोड़ा सही उस पे जा रहा है ये। ठीक है, तो हम इसमें अब जैसे कि बीच में काफी अब मैं पर्टिकुलर इसको सेलेक्ट करूंगा ट्रैक को, और इसको प्ले करूंगा कि मेरे को जिससे पता चले कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स है, मतलब क्या क्या मैं हटाना है मुझे। बेटे अभी पीछे नॉइज आ रही है, अब मेरे को हटानी है, तो कटर यूज करूंगा मैं। कटर लिया और मैंने इस पार्ट को हटा दिया। ठीक है, वो अनवांटेड चीज थी। फिर बेटे बेटे मौज कर दी। ठीक है, अब ये बीच में पार्ट आ रहा है, एक नॉइज है ये, मेरे को ये भी नीचे, तो मैं ऐसे ऐसे जो पार्ट्स हैं इनको डिले हटाऊंगा। इसको उठाया, ठीक है, फिर डिलीट। ठीक है, फिर इधर ये क्लैप आ रही है पीछे, अब तो मेरे को विजिबल हो रहा है कि हाँ ये तो मेरे काम की चीज़ है ही नहीं, तो मैं उसको उड़ा दूंगा। पर्टिकुलर जूम इन करके मैंने ये पार्ट हटाया। ठीक है, फिर ठीक, ये हो गया। फिर ये पार्ट भी हटा, ठीक है, हाँ ये भी हटा देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। हाउ टू मेक कैरियोके फ्रॉम सॉन्ग्स। कैरियोके फ्रॉम सॉन्ग्स के लिए डिफरेंट अप्रोच होती है, यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइक RX7 आता है, एडिसन आता है, फिर उसके अलावा ये अडोबी का कौन सा आता है, हर्षित सर? Yeah, there are many AI-based approaches right now. So there are apps available and even many sites which can make karaoke songs. So traditionally, we made karaoke by removing the mids from a song. So for example, when we are DJing, we use this technique commonly when we are DJing. So when we are mixing two tracks, generally we remove the vocals from one song and introduce the vocals of other song. So we generally reduce the mid-range frequencies. So most of the vocals are suppressed by that, but contemporary techniques use some AI-based approaches. You can know more about that, but you don't really need to know about that because there are apps available that can remove the vocals. बेसिकली कैरियोके क्या होता है कि आप किसी सॉन्ग्स के ड्रम्स और इंस्ट्रूमेंट्स हटा दो, कि अगर सॉन्ग्स में अगर माइनस करोगे इंस्ट्रूमेंट्स और साउंड्स और वोकल्स सिर्फ, तो आपका रिजल्ट होगा वोकल्स, बेसिकली मैथ्स ही हो गई एक तरह से। तो फ्रीक्वेंसी अपन माइनस करेंगे, जो कि वोकल्स के अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे इंस्ट्रूमेंट्स है उनको हम माइनस करेंगे सॉन्ग में, सॉन्ग की ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज में। तो उस वजह से जो फ्रीक्वेंसीज कट के बचेगी वो सिर्फ वोकल्स की फ्रीक्वेंसी बचेगी, और सिर्फ आपको वो सुनाई देगी। तो बेसिकली आप सॉन्ग से कैरियोके ऐसे बनाते हो। अब उसकी अप्रोचेस क्या होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप की होती है। तो ये एक चीज होती है, वो मैं तो RX7 आई यूज RX7 फॉर दैट। ठीक है, हाँ, तो अब
बैक टू रिमिक्सिंग। तो ठीक है, मैंने अब ये पर्टिकुलर एक वोकल चॉप्स कर लिए। अब इनको मैंने और वो भी कर दिया। अब मैं इनको बीट्स के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज करता हूँ। ठीक है, तो इनको अब यही है कि इफ यू आर क्रिएटिंग अ सॉन्ग देन यू शुड यू हैव टू लिसन इट टू इट अगेन एंड अगेन, और इट कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर ईयर्स। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आप वर्क कर रहे हो तो ज़्यादा देर तक मत करो, क्योंकि एक हियरिंग कैपेबिलिटी होती है आपकी, वो टाइम के साथ जितना द लॉन्गर यू लिसन टू अ पर्टिकुलर साउंड्स और द हियरिंग कैपेबिलिटी गेट्स डिक्रीज। तो बीच बीच में आपको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा ताकि आप सारी फ्रिक्वेंसी सुन पाओ। मेन चीज़ होती है कानों को रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के टाइम पे। कई बार मैं तो मतलब ऐसा ठीक है हाँ थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, प्रोजेक्ट को दिल से लगा लेता हूँ कि भाई ये तो कुछ भी हो जाए करना है, 6-6 घंटे लगातार बैठ जाता हूँ। और वही होता है कि उसमें कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग इन दैट, क्योंकि अब मेरे को फ्रिक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही तो मैं गाना अच्छा क्या कर रहा हूँ उसमें। तो ये तो हेल्थ हेल्थ का भी उसमें केयर करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है बेटे ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर ठीक दी है। वाह बेटे वाह। अब मैंने एक पर्टिकुलर मैंने ये वोकल सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को इसमें पैटर्न बनाना है, लाइक वो बोलता है बेटे, ठीक है, तो अब मेरे को इसमें इफेक्ट देना है तो मैं बेटे को रिपीट कर सकता हूँ, लाइक बेटे 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 बेटे। तो एक ही रिदम बन रही है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को चॉप करो, फिर उसको पर्टिकुलर उसके हिसाब से असाइन कर दो। जैसे कि अब मैं करता हूँ, वैसे मेरे को इसमें टाइम लगेगा, पर्टिकुलर सुनना पड़ेगा, तो मैंने जो पहले करा था मैं उसमें अब वहां से कंटिन्यू करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने चॉप्स कर रखे। अब मैं जैसे आपको, ये पूरा एक साउंड था, फिर इसमें मैंने पर्टिकुलर पार्ट अलग अलग चॉप करे हुए, मैं एक एक पार्ट आपको सुना देता हूँ। जैसे कि ये है, ठीक है, एक ये है। ये पर्टिकुलर मैंने उसके अलग अलग पार्ट्स काट के उसमें फिट कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू बीट। फिर ये मौज कर दी, मौज इसको अलग काटा, कर दी वाह बेटे वाह। ठीक है, इसको भी अलग वास काटा। वास 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 शेर 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 तम 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 तप 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 तप। ठीक है, ये ऐसे करके मैंने इसमें डिफरेंटली असाइन करा। फिर उसके अलावा अब ये मेरी किक पैटर्न है जो वहाँ पे मैंने बनाई थी अभी, ये सेम है इसके। ठीक है, तो अब मैं आपको ये भी पैटर्न भी ये किक है, फिर ये हमारा वो है टॉम है जो हमारा बेसिकली स्विंग इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, ये काम का नहीं है। फिर एक अब ये होता है कि जैसे कि मान लो आपकी कोई ड्रॉप आती है तो उसमें एक इफेक्ट होना चाहिए कि मतलब एकदम एकदम से अगर कोई चीज हिट करती है अजीब सी तो वो अजीब लगती है, पर एक फ्लो के साथ हिट करती है तो एक फन मिलता है। तो उसके लिए अब जैसे बीच में ये खाली एरिया था, थोड़ा एम्प्टी स्पेस था, इसको फिल करने के लिए मैंने एक फिलर बोलते हैं इनको, फिल्स, जो ड्रॉप से पहले आपकी ड्रम बजते हैं ऐसे कभी देखा हो तो ये फिल्स होती हैं आपकी। तो ये वही, फिर स्वीप्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हो गए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, जो वोकल चॉप्स मैंने इनको बीट्स के साथ असाइन करी है तो वो प्ले करता हूँ। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। वास वास शेर तम तप। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट वोकल चॉप्स करके एक वो पैटर्न बनाया, लाइक बेटे टेटे। तो एक वो तुम्हें सॉन्ग के अंदर तुम्हें मतलब एक इफेक्ट दे रहा है, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है। अगर मैं नॉर्मली ऐसे पूरा वोकल डाल के और पीछे बीट लगा देता तो उसमें मजा नहीं है। वो तो एक तो मतलब कोई भी कर लेगा वो, तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। तुम्हें जितने ज्यादा अगर सॉन्ग सुनोगे, इफ यू लिसन टू मोर एंड मोर म्यूजिक, then you will get idea that this could be possible in this, or this would look soothing to you, or it will look good to you। तो ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग ड्रॉप पार्ट हो गया। फिर अब यहाँ पे ये ड्राइवर पार्ट, भाई अब हैवी ड्राइवर भाई, इसको मैंने यूज किया है एज अ फिल, कि जैसे कोई ड्रॉप आती है उसको हिट करने से पहले एक पार्ट डालते हैं जो कि आपका इंट्रो होता है। तो ठीक है, मैंने उसको डाला। फिर ये इसका पैटर्न ये बनाया, ये अपना एक अब वो बनाएगा, क्या बोलते हैं उसको आपका, हम भूल गया। फिल ही बोल लो, लॉन्ग फिल है जो कि ड्रॉप से पहले डलता है। तो इसको प्ले कर दें। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। ये अब जा रहा है, अब इसके बाद एक ड्रॉप आएगी, तो जैसे ऊपर ले जाके और फिर वहां पे लाते हो आप तो एक इफेक्ट आता है। तो अब इसको प्ले करूंगा स्टार्टिंग से, पूरा प्ले करते हैं। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। वास वास शेर तम तप। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। मौज कर दी वाह, मौज कर दी वाह बेटे वाह। तो ये मतलब
ये एक छोटा सा रिमिक्स ट्यूटोरियल था आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे मतलब रिमिक्स कर सकते हो किसी चीज को। अब मैंने भी इसमें मतलब कूल, थैंक्स। तो यही है रिमिक्सिंग का बेसिक फंडा, यही है कि वो सॉन्ग को जानो, उसको एक उसके लिए पर्टिकुलर बीपीएम सेलेक्ट करो, फिर उसका एक वो आप पर्टिकुलर उसकी आपको जिस फॉर्म में जिस जॉनर में कन्वर्ट करना है, द डिजायर्ड जॉनर, तो उसमें आप उसको कन्वर्ट करके उस पे उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। अब मैंने जैसे ये सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कॉमेडी वाइब है, तो इसमें मूंबातौन टाइप का अगर मैं स्विंग डालूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मजा ही आ जाएगा, मौज ही कर देगा। तो ऐसे मौज कर दी भाई इसने। तो ये था बेसिक ट्यूटोरियल रिमिक्स का, बस यही है। ऑन टू यू हर्षित सर। यार ये तो काफ़ी फन था। मैंने भी काफ़ी चेंजेस सुने, तो बढ़िया हो गया, काफ़ी सच में मौज कर दी। सो ये वर्कशॉप फन हो गया आई गेस होपफुली सबके लिए। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, तो वहाँ पर कंटेंट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आते रहेंगे चीज़ों के, पता चलता रहेगा क्या हो रहा है। और रिसेंटली डिस्कॉर्ड पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं काफ़ी, सो उधर भी आ जाना गाइज। हाउ मेनी वर्कशॉप्स विल बी कंडक्टेड? ओके, सो यार जनरली हम करते रहेंगे ऐसे वर्कशॉप्स, नई नई चीज़ें सीखनी है अभी, सो देर इज़ अ लॉट मोर टू लर्न। कश्मीर के सैंपल्स कहाँ से लाए? गूगल बाबा जिंदाबाद। बाकी अगर हाँ किसी को चाहिए हो कश्मीर सैंपल तो मेरे को डीएम कर देना, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके दे दूंगा उनको। डीएम कर देना, या और फिर डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे भी डाल देंगे। हाँ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहां पे डाल हाँ, देंगे हम। और हाँ ठीक है। ओके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यार जनरली जैसे वी एक्सपेक्ट कि एफएल स्टूडियो हो गया, या फिर डीजेइंग हो गया, या फिर रेडियो प्रोडक्शन हो गया, एंड पॉडकास्टिंग, ये जनरली जो चीज़ें हम ऑडियो सेक्शन में करते हैं वो नहीं पता होती लोगों को। सो वी विल जज यू ऑन योर बेसिक स्किल्स, जैसे इफ़ यू आर कमिंग फॉर रेडियो एंड पॉडकास्टिंग वील सी हाउ वेल यू कैन स्पीक, या फिर इफ़ यू आर कमिंग फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन डीजेइंग देन वील सी हाउ योर बेसिक म्यूजिक सेंसेस, बीट सेंस, कैन you understand beats, pick up beats, something like that. Not really technical, but yeah, your general aptitude. We'll test those stuff. Your general dedication, of course. बाकी प्रोडक्शन पे तो अपन कॉन्टेस्ट भी करा सकते हैं। कॉन्टेस्ट करा सकते हैं क्या? ठीक है यार, फिर कॉन्टेस्ट रखते हैं कुछ टाइम में। हाँ बाकी वो लोग उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सबको सेम सैंपल्स मिलेंगे, सेम हम्म। वोकल्स मिलेंगे। अब जो सबसे अच्छा खेलेगा उसका ठीक है, बढ़िया है। बाकी अब मैंने ट्यूटोरियल दे दिया है आपको, इससे आइडिया तो लग गया कि कैसे कैसे क्या करना है उसमें। Okay, Mayurdeep says कि Mayurdeep has made some tracks. So यार many people have been sharing their tracks on Discord. So काफ़ी बढ़िया ट्रैक शेयर कर रहे हो आप लोग। तो मैं फिर से डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर देता हूँ चैट पे, इफ़ पीपल हैव लॉस्ट द लिंक, सो प्लीज़ ज्वाइन दैट। वहाँ पर बढ़िया कम्युनिकेशन होगा। और हाँ अगर किसी को एफएल स्टूडियो पर्टिकुलरली सीखना है या फिर उसको और भी अच्छे से मतलब डीप में करना है, तो पहले स्टार्टिंग में ठीक है इस ऐसे तुम बेसिकली खेल सकते हो इसमें। फिर एक यूट्यूब चैनल है इन द मिक्स करके, इन द मिक्स वो बेस्ट ट्यूटोरियल्स देगा तुम लोगों को एफएल स्टूडियो के, मैंने भी वहीं से सीखा है। तो उसके हम्म। ट्यूटोरियल देखना, और ट्यूटोरियल्स देखने का मतलब ये नहीं कि तुम देख रहे हो उसको बस, वो एट पे मतलब टाइम उसके साथ ही आपको उसको जो वो कर रहा है वो करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही सीखोगे। अगर ऐसे पहले ट्यूटोरियल देख लिया और फिर काम करने बैठोगे तो नहीं होगा वो। एफएल इज अवेलेबल फ्री और डू वी नीड टू परचेज इट? एफएल परचेज करना पड़ता है, इसलिए क्रैक, मैं ये एडवाइस दूंगा कि क्रैक डाउनलोड कर लो, और अगर अंधा पैसा है तो परचेज कर लो, कोई बीट ही नहीं है। और मेन प्रॉब्लम ये इसका परचेज करने का इजी मतलब फायदा ये रहता है कि अब जैसे क्रैक है, तो क्रैक में मैं अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज और करूंगा कि डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करने में, डिफरेंट इफेक्ट्स डालने में, उनके लिए अलग अलग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्रैक होता है तो वो सॉफ्टवेयर एफएल स्टूडियो के अंदर फर्दर इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्रैक में इनकन्वीनियंस होता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपने परचेज कर रखा है एफएल स्टूडियो तो आपको बस इंस्टॉल बटन दबाना है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर क्रैक है तो आपको पहले इंस्टॉल लोकेशन पर्टिकुलर डिसाइड करो, फिर वो कहाँ अलग अलग फाइल्स को अलग अलग कॉपी करो, और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा। तो इसमें मतलब प्रॉब्लम काफी होती है। So the link we have provided is pretty much easy to शुड install. आई स्विच टू You, लैपटॉप वर्जन? हाँ लैपटॉप वर्जन पे शिफ्ट हो जाओ।
लैपटॉप वर्जन? मोबाइल वर्जन और लैपटॉप वर्जन दोनों आते हैं ना इसके। अच्छा, मोबाइल वर्जन इज प्रीटी मच लिमिटेड एक्चुअली. द मोबाइल वर्जन इज अवेलेबल एज अ प्लगइन इन द डेस्कटॉप वर्जन. ओह, फन स्टफ. ऐसा, हाँ हाँ मैंने भी देखा था, हाँ है। हाँ, बट स्टिल यू शुड डेफिनेटली स्विच टू द लैपटॉप वर्जन. So recruitment test, I guess it should be around the mid of April. आफ्टर एमटी। Hmm. और तो क्या, बाकी वही है, वहां पे होते तो डीजिंग वीजिंग से कर लेते रिक्रूटमेंट, वहां पे तो हो जाता है इजीली। अब प्रॉब्लम सबके लिए ही है। काफी काफी चीजें होती है. You would have got to see a lot of things. We have got cool hardware and stuff. And just join our Discord if you want suggestions or suggestion for the tracks you have created. तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, इंस्टा पे फॉलो करो, कैंपस बीट्स है, और फेसबुक पे भी फॉलो करो। और कोई भी इशू आता है डीएम कर दो आप हमारे उसके कैंपस बीट्स के पेज पे करोगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। from where to get tabla loops, different samples, just type on Google, type samples of tabla for FL Studio, like samples tabla, आप कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे सैंपल्स। बाकी कैशमेर कैशमेर जो सैंपल पैक्स हैं वर्ल्ड के बेस्ट पैक्स हैं। ये ऐसे पैक्स है कि मतलब आप इन पैक्स से एक गाना पूरा बना दोगे, पूरा कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज की, क्योंकि इसलिए तो गॉड प्रोड्यूसर है कैशमेर। इसका मैं इसकी शेयरिंग बंद कर दूं क्या, अगर मतलब किसी को ऐसे क्वेश्चन पूछने में, को चैट्स दिख नहीं रही क्योंकि। हाँ, कूल है. अभी किस वी आर डन. शेयरिंग, हाँ जरूरत पड़ेगी तो वापस शेयर कर दूंगा। हम्म. चैट्स कहाँ पे आती है? राइट साइड. हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इस चीज का एफएल ट्यूटोरियल में मिल जाता है। हाँ, एक सीरीज चलती है यूट्यूब पे, हाउ टू करके, तो जैसे हाउ टू फिर एक आर्टिस्ट का नाम होगा, तो उससे आपको एफएलपीज मिल जाते हैं, एफएल प्रोजेक्ट्स बोलते हैं जिनको, जैसे हाउ टू कैशमेर, हाउ टू इलीनियम, हाउ टू डीजे स्नेक। तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं आर्टिस्ट के एफएलपीज मिलेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखो, उनको स्टडी करो, उनको प्ले करो। पर उसमें यह है कि अगर आपके पास उनके यूज करे हुए सॉफ्टवेयर अपने एफएल स्टूडियो में नहीं होंगे तो वो प्रोजेक्ट ओपन ही नहीं होगा, और मेन मेन प्रॉब्लम वहाँ आती है। मेरे साथ, मैं मेरा केस, एक केस बताता हूँ। स्टार्टिंग में मतलब जब मेरे को नहीं आता था एफएल, मुझे ऐसा, मैं मतलब मोरल डाउन हो गया था कि मेरे से गाने बन ही नहीं रहे थे, मैं कितनी कोशिश कर लूँ। आई एम ट्राइंग, आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू क्रिएट अ सॉन्ग, but I was not able to implement that. Like I cannot complete a particular melody to a song. I was at one time I was at that stage. Then my friend Anmol Kumar, he helped me. That he told me that there you can install VSTs. अब मुझे आता नहीं था VST कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसने मेरे को एक साइलेंट वन इंस्टॉल करके दिया, और मैंने विद इन 1 वीक उस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से मैंने पूरा एक मेलोडी से पूरा गाना बना दिया था। तो VSTs का बहुत बहुत रोल होता है इस चीज में, कि आपको अपना VST पकड़ना होता है। जैसे मेरा VST सिग्नेचर VST मैं मानता हूँ कि साइलेंट वन है मेरा, मैं साइलेंट वन से पूरा एक गा, तो मतलब मैंने उसको एक उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया उसको। मेन चीज ये है, तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। You sir, please show us some of your works. एक ट्यूटोरियल दे सकता हूँ मैं, मतलब ट्यूटोरियल क्या, एक प्रोजेक्ट दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा मेरा मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट है कि मैं ये ट्रैक मतलब ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड तो क्या अच्छा 22, ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दूंगा ये। तो मैं इसको आपको एक पर्टिकुलर वो ड्रॉप सुना देता हूँ, लाइक नहीं पार्ट कौन सा सुनाऊँ, साउंड आ रही है? यस सर।
मतलब यहाँ पे भी मैंने एक थोड़ा क्रिएटिव कुछ करने को Oh, कोशिश I'm किया। sorry. Did I interrupt your disco dancing? तो ये एक थोड़ा सा टीजर था, मतलब मैंने इसमें ट्राई किया है कि एक जो टेक्नो म्यूजिक है और जो साई ट्रांस है उनको मिक्स करके मैंने एक इसका नाम दिया टैक्सी, TCHSY, साई ट्रांस और टेक्नो म्यूजिक का एक मिक्सचर। तो मतलब वही मैंने अभी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ फ्यूचर बिग रूम में। अब मैं मेजरली EDMs में वर्क करता हूँ, ऐसे और प्रोजेक्ट नहीं करता घातक म्यूजिक से। थैंक यू ब्रो। Oh, important questions. So Arjun asked, when will college reopen for us? Oops. So Piyush is in second year and even Piyush can't come back to college right now. मैं तो मरा जा रहा हूँ कॉलेज जाने का। A disappointed Samir Raj says never. चलो तो फिर क्या करे भाई। Yeah, I guess it's time to wrap up. It's been a great time with you guys. Thank you so much. And keep in touch. सीखते रहो यार, FL Studio से शुरू करो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑडियो सेक्शन में सीखने के लिए। मतलब when you come here you will get to learn DJing. Like we have been to two inter-ITs and always won the gold medal in that. So DJing is really cool and you'll get Cool तो to है। make conversations. We do podcasting and stuff, we make radio shows. Cool है. Goodbye guys, good evening, have fun.